Watching NewsX and I'm Shivani Singh. The top story is coming in where ADP Mahesh Bhagwat has commented on the tragic road accident that took place on the Mirzaguda Khanapur road near Chevalla today morning, which led to the death of 19 people. He said that the Vikarabad bus depot was heading to Hyderabad when a speeding tipper from Chevalla collided head-on with it. He said several people sustained injuries, with the seriously injured shifted to a hospital near Chevalla. Let's in fact listen in to what he has said. See, today morning, this bus of Vikarabad depot, while going towards Hyderabad, at that time the tipper was coming from Hyderabad side, from Chevalla towards Vikarabad. There was head-on collision. It seems tipper was at very high speed, and tipper dashed this bus, and tipper was carrying the gravel, and that because of the gravel impact, many people suffered. Total so far 19 casualties. There are 10 women, 8 men, plus one small kid of 3 months old baby, and injured people with small injuries, they are in the Chevalla Government Hospital. Those who have some major injuries, they are in Patnam Mahindra Reddy Hospital near Chevalla, and some uninjured normal people, they have already gone to their home, so we are tracking them also. Okay. As per the conductor's statement, around 72 members were there in the bus. That is the information. Okay. We are verifying that also. Thank you. Joining me on the broadcast is my colleague Raj Kiran with more details on this story. Raj, we have been tracking the developments. Now we have the ADG actually stating that there were 19 people who have been killed. He stated the details of those who have also been injured, and he is giving new details as to how this accident actually occurred. Yes, Shivani, as ADG Mahindra was talking to the media, he said that around 72 passengers were inside the bus when a bus traveling from Chevalla bus stop towards the Hyderabad in the morning hours. So when a tipper lorry coming from the opposite direction with a high speed collided with the RTC bus, and in which 19 people have died in this incident, and more than 20 people are undergoing treatment, in which 3 people are critical. This is what the ADG of Police Telangana said that, and he also clarifies that the 19 people officially said that 19 people are died and 3 more people are undergoing treatment in the hospital. This accident took place early in the hours in the morning when a Chevalla bus all right, Raj, please do stay on with us. Also joining us on the phone line currently is the Telangana Transport Minister Ponam Prabhakar. Thank you, sir, for joining us. We want to know the latest details, what the government is actually announcing regarding this entire unfortunate incident that has taken place. Yes, this is very unfortunate incident. Today morning, by RTC bus, there are passengers traveling by 72 passengers, because yesterday Sunday, they want to change their work in Hyderabad. So Monday morning, तांडोर से निकले हुए ये बस में 72 लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो उसमें यह चेवल्ले रोड के पास टिप्पर टोन मेटल एंड टिप्पर आके एक्सीडेंट किया है। तो उसमें 72 पैसेंजर में 19 डेथ हो गए और 15 घायल है, अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके लिए सरकार के तरफ से जो मृत्यु हो गए उनके 5 लाख रुपए सरकार से और आरटीसी के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 2 लाख रुपए दे रहे, और जो घायल हुआ है उनको 2 लाख रुपए का ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम भी खत्म हो गया, बॉडी सब उनका गांव भेज रहे। इंसिडेंट के ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर किया सरकार। सर, अभी तक इंक्वायरी जो सेटअप हुई है उसमें से कोई प्रिलिमिनरी बातें पता चली है, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत सारी बातें और एलिगेशंस लगा रही है? देखो, ये राजनीति करने का टाइम नहीं है, इसके ऊपर रोड का इशू है, रोड का इशूज को लेकर इसका कोई ताल्लुकात नहीं। और सर, गवर्नमेंट क्या क्या करेगी आगे जाके ताकि ये ऐसी इंसिडेंट्स ना आए? हमने अभी एक पुलिस ऑफिशियल को सुना था, उन्होंने बोला था क्योंकि ग्रेवल को हिट किया हाई स्पीड व्हीकल ने, इसीलिए ये एक्सीडेंट हुआ था। देखो मैडम, वो मेटल
का वो लारी टिपर लेके जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, तो डिच हुआ है, उसने इंक्वायरी ऑर्डर किया है, मगर जो गाड़ी, दो गाड़ियों का भी फिटनेस ठीक है, इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज राइट बाय ट्रांसपोर्ट रूल्स। क्या ओवर स्पीड है, कैसा, किसका नेग्लिजेंस है, वो अभी पता जानकारी होगा, मगर हम पहले उसके साथ साथ हम जो मृत्यु हो गए उनका फैमिलीज को कैसा रिजॉल्व करना, उसका क्या मदद कर सकते हैं और वो पिंडल के लिए कैसा इंतजाम करना है उसमें लगे हुए हैं। और जो अभी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट के लिए हम स्पेशल करके सरकार की तरफ से पूरे including all this area MLAs and myself as a minister and with the district in charge Mr. Sudhir Babu also, we are all together and we are from government. We high level officers teleconference also done. तो इसीलिए कोई यहाँ ऐसा कमी महसूस नहीं होने देते हैं हम लोग पूरे काम में। जो इंसिडेंट हुआ है वो एक्सीडेंटल इंसिडेंट है, बहुत बुरी है, उसके ऊपर हम जांच कर रहे हैं और इसके लिए रोड की जरूरत है। रोड की जो हालत है ठीक नहीं है। 2000 बहुत सारे 2018 से पहले भी सैंक्शन हुआ था। ये क्या एनजीटी केस में था, पहले 31 दिसंबर को, अक्टूबर को ही ये रिजॉल्व हुआ था। वहां के एमएलए राममोहन रेड्डी का भी पूजा करके स्टार्ट किया रोड का काम। तो डिफरेंट रीजंस रोड वाज स्ट्रक नॉट डन कंप्लीटेडली, दैट इज आल्सो वन इश्यू। बट प्रेजेंट माहौल में हम उसके बारे में क्या करना, कैसा करना, हम तो एक ही बात कहते हैं कि विपक्ष को भी इस ऐसे टाइम पे पॉलिटिक्स के अलावा पहले जो पेशेंट है उसको देखो, जो मृत्यु हो गए उनका फैमिली कंसोल करने की कोशिश करना, ये हमारा तरफ से विज्ञप्ति। सर, तो क्या आगे जाके अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही रहेगी कि जहां जहां ऐसे रोड्स हैं उसको सबसे पहले दुरुस्त किया जाए? 100% मैडम। वहाँ जो लोग, थोड़े लोग लिटिगेंट है, एनजीटी के नाम पे केस लटका हुआ था, वो परसों भी रिजॉल्व हुआ और में हम केंद्र सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है उसको रोड डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे दिए तेलंगाना के लिए। और हम लोग तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के गाइडेंस में भी, यूनिसेफ के गाइडेंस में भी हम रोड सेफ्टी के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम्स ले रहे हैं। इसमें सिर्फ सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होता है उससे ही काफी नहीं है, जनता का भी मदद चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्योंकि देखो सिर्फ बस में सीधा लोग, वो बेचारे लोग उनके काम के लिए हैदराबाद पहुंचने के लिए सुबह 5-6 बजे उठ के बस में चढ़ा है, वो तो बेफिक्र से सुबह बस में बैठ के वो उसके फिर जाके काम में लगना, उनका फैमिली को पालन करना है, उसका फैमिली को देखभाल करना है। मगर सडनली अटैक हुआ, उनका मृत्यु हो गई। यही इसलिए रोड एक्सीडेंट, रोड सेफ्टी के बारे में सरकार बहुत पर्टिकुलर ख्याल कर रहे हैं। हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पूरे कॉलेज को सबको मिलाकर रोड सेफ्टी के बारे में। किसी का जान ऐसी जाने से मतलब नहीं है ना, इसलिए वो दैट इज वन प्रायोरिटी दैट आई रिक्वेस्ट टू, मेरा इच्छा है पब्लिक को इसमें शामिल होना, सपोर्ट करना है। All right, thank you sir for talking to us and giving us your time. Meanwhile, in latest visuals coming in fact